I have already explained that graph, but that topic was not completed yesterday due to the shortage of time. So I am again coming that topic. Look here again. What we have to start, I have the last function, that is the cosec function. Cosec can be written as 1 by sine x. Sine cannot be 0 for the being a function, because if the sine becomes 0 on those value, y becomes undefined. So we subtract those values from the real number r minus, and as we know that sine becomes 0 for n pi values where n belong to set of integers. It means it will be become 0 on 0, pi, minus pi, 2 pi, like so on. So domain is r minus n pi, and range, as we know, what is the range here? R minus open interval minus 1 to 1. And as we know that this can be written as like this: minus infinite to minus 1, close, union 1 to infinite. I am again going to draw the graph for cosec x, taking the domain this and range this. Domain is r minus n pi, n belong to set of integer, and the range is r minus open interval minus 1 to 1. Please, all of you, switch off your speakers. Students, please switch off your speakers. Someone has on, there is speaker of someone is on. Whose speaker is on? Please off your speakers. Please off your speakers. Thank you. Zero to zero zero, it is our origin. It is x-axis. Suppose it is pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, and in left side it is minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus again minus 2 pi, here the x. Whatever you have seen here, for the cosec, the graph, as you know that the cosec is the function of sine, 1 by sine. मतलब cosec किससे फॉर्म हुआ है? It is the form with sine, and whenever the sine becomes 0, cosec will become infinite. तो sine 0 कब होता है? On the values of the pi, multiple of the pi. It means that on 0, pi, 2 pi, minus pi, like so on values. तो उन वैल्यूज पर ये 0 होता है साइन, और उन वैल्यूज पे कोसेक इनफाइनाइट होगा, बिकॉज द कोसेक इज द फंक्शन ऑफ साइन, एंड इट इज मेड फ्रॉम द साइन, वन अपॉन साइन, दैट इज द कोसेक. सो 0 पे इट बिकम्स इनफाइनाइट. तो अगर हम ये इंटरवल ऐसा बना लें, सपोज, एकदम आराम से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा. इसके बाद ग्राफ खत्म हो जाएगा तुम्हारा, एंड देन वी विल कम ऑन द एक्सरसाइज.
look here, suppose it is, as we know that the range for the cosec 1 to infinite and minus 1 to infinite, minus 1 to infinite here and 1 to infinite here, and on the pi by 2, on the pi by 2 1 upon sin pi by 2 that becomes 1. तो pi by 2 पर ये वैल्यू 1 गेन करेगा, and it is 0 to pi, that is first quadrant and as well as second quadrant. And as we know that in the case of sine or cosec, first and second quadrant gain the positive values. So here 1 to, अब here as we know that on 0 and pi by 2, 0 and pi, it becomes infinite. 0 here, the 0 and pi, it becomes infinite, and where it is going to be start from 1 to infinite and 1 to infinite, like that. And again we come in the pi to 2 pi minus 1, suppose here. And as we know that in third quadrant pi to 3 pi by 2, and in fourth quadrant that is 3 pi by 2 2 pi, it becomes negative, sine is negative as well as the cosec is negative. And the range starts from minus infinite to minus 1, minus infinite to minus 1. Suppose here the minus 1, it is the minus 1, minus infinite to minus 1, again minus 1 to minus infinite. Here it is minus 3 pi by 2 and minus 1. 3 pi by 2 on the x-axis and minus 1 on the y-axis. Here pi by 2 on the x-axis and 1 on the y-axis. If we come here in this part, it is the negative direction of x-axis. And on pi by 2, again we know that it is the fourth quadrant and it is the third quadrant. We are moving in negative direction. Here again, as we know that in fourth quadrant and third quadrant it is negative. So हमको पता है ना कि फोर्थ और थर्ड में साइन भी नेगेटिव होता है और कोसेक भी नेगेटिव होगा. तो वैल्यू कहाँ से चालू होगी? -1 से माइनस इनफाइनाइट, -1 से माइनस इनफाइनाइट. अब जरा इसमें आओ. अब ये क्या है मेरा? ये है उल्टी, मतलब ये 0 से मैं निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा? ये होगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ फिर से ये सपोज इट इज 1 हियर, 1 to infinite, like that. अब बात आती है what is the range here? As we know that for the cosec and sec the range is minus infinite to minus 1 union 1 to infinite. And which part is going to complete this range? In the whole, I have taken some intervals, some quadrants, and this can be repeated here in minus infinite to plus infinite. मतलब ये तो मैंने कुछ parts पर बना दिए हैं ग्राफ. ऐसे ग्राफ हम पूरे रियल लाइन पर बना सकते हैं और हम देख सकते हैं कितनी जगह ये सारी चीजें रिपीट होंगी. Come here. What we have to do here? We have to complete the range, this range, and in which part this range is going to be complete? Minus pi by 2 to 0. Look here, minus pi, ऐसे मान लिया था मैं, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा इसको बाहर देता हूँ. तो माइनस पाई बाई 2, अब यहाँ पे क्या है? ये -1 है मेरा. ये है एक्स एक्सिस पे माइनस पाई बाई 2 एंड वाई एक्सिस पे -1. वाई मीन्स रेंज और -1 to infinite here, or minus infinite to -1 here, and here 1 to infinite, ये पार्ट. अगर हम इतने पार्ट की बात करें यहाँ से यहाँ तक, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 0 to minus pi by 2 and 0 to pi by 2, that is the length of पाई. लेंथ निकालनी आती है क्लास 11th. लेंथ कैसे निकालते हैं? इससे इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं. वैल्यू क्या आएगी? पाई आएगी. लेंथ क्या हो गई? पाई. यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर देखो
अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज कवर हो जा रही, माइनस इनफाइनाइट टू -1 and 1 to infinite, all the range is covered here. So we can take this interval here. Look here, 1 to infinite, I am talking about the pi by 2 to 3 pi by 2 interval. It is also the length of pi. Here 1 to infinite, and here minus infinite to -1. Also cover the whole range here. Here also 1 to infinite, minus 3 pi by 2 to minus pi by 2. 1 to infinite and -1 to minus infinite to -1. So there will be infinite intervals like that who will able to cover this range, जहां से ये रेंज कवर हो जाएगी. अब ये बात आती है कि अगर हम बात करें तो व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ दिस कोसेक फंक्शन. ब्रांच मीन्स जिसमें कि हम इस इंटरवल को इन्वर्टिबल बना सकते हैं, दैट इज अवर 1 ब्रांच. मतलब जिस अभी तक क्या है, अगर हम ऐसा पूरा ले लेंगे तो 1 नहीं बनने वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, आगे भी बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे मिलेंगे इंटरवल्स जिसमें कि पूरी रेंज कवर हो जा रही है. और मुझे क्या है 1 बनाना है, तो हम पूरे इंटरवल की तो बात नहीं कर सकते, पूरे रेंज की माइनस रियल नंबर पूरा नहीं ले सकते हैं. अब रियल नंबर में कौन कौन से इंटरवल ले सकते हैं, ये इंटरवल ले सकते हैं, ये इंटरवल इस -π/2 टू π/2 ले सकते हैं एक्सेप्ट 0. फिर -3 π/2 टू -π/2 ले सकते हैं एक्सेप्ट -π, बिकॉज ऑन -π इट बिकम्स इनफाइनाइट. इनफाइनाइट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उस पर इमेज नहीं मिलेगी. फिर यहाँ से -π/2 टू 3 π/2 ले सकते हैं. तो अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें, इसकी ब्रांचेस क्या हो गई, हम यहाँ से चल रहे हैं. अब इस तरह से इनफाइनाइट ब्रांचेस बन सकती हैं, लेकिन कुछ ब्रांचें हम ले रहे हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं मुझे. -3 π/2 क्लोज, क्योंकि ये वैल्यू मिल रही है. और कहाँ तक, -3 π/2 टू -π. -π इज ओपन हियर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं -3 π/2 टू -π/2. और इस इंटरवल में एक वैल्यू मुझे हटानी है, दैट इज द -π, बिकॉज ऑन दैट वैल्यू द फंक्शन इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट. मतलब ये x की वैल्यू इनफाइनाइट, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है यहाँ पर -π पर. तो हम क्या करें कि हम रेंज लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पाई को हटा दें, -π को. इसी तरह से दूसरा इंटरवल ले सकते हैं, कौन सा, -π/2 टू π/2. और इसमें पाई का मल्टीपल क्या हो गया, 0 यहाँ पर, तो 0 हटा सकते हैं इसमें से. फिर कौन सा है, π/2 टू 3 π/2 ले सकते हैं, एंड इन विच वी कैन मेक आउट द दिस वैल्यू, सॉरी मेक दिस वैल्यू पाई. इन दोनों में पाई, इस और यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में कौन सी पाई का मल्टीपल आएगा, पाई आएगा, और पाई पे फंक्शन इन अनडिफाइंड बनेगा, तो वहां से फिर उसको हटा दिया. और इस तरह से हम इनफाइनाइट इंटरवल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन विच द फंक्शन इज गोइंग टू बी 1 एंड सो इट विल बी इन्वर्टिबल फंक्शन. अब इसमें से प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होगी, तो उसने कहा कि इस ब्रांच को हम प्रिंसिपल ब्रांच बना लेते हैं, दैट इज अवर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू. नहीं दिखाई दे रहा है, ओके नो नहीं सर. तो पहला इंटरवल मैंने क्या लिखा, फिर से मैं जो लिखा हूँ बोल दे रहा हूँ, -3 π/2 टू -π/2 एक्सेप्ट -π. कहाँ दिखेगा तुम्हें, ये इधर दिखेगा सर यहाँ यस दिखेगा. सर, इधर दिखेगा. हाँ यस सर, दिख रहा है यहाँ पे. तो ब्रांचेस में लिख रहा हूँ फिर से. तो ये एक ब्रांच, मैंने ब्रांच लिखने का मतलब है कि जहां से जहां तक मुझे पूरा इंटरवल कवर हो रहा है. तो ये एक पार्ट ये हो गया, -3 π/2 टू -π/2. और उसमें से कौन सी वैल्यू हटानी पड़ेगी, ये वैल्यू हटानी पड़ेगी. क्यों, क्योंकि इस पर ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड बन रहा है. देखो यहाँ पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ से घूम के आ जा रहा है, और यहाँ पर भी. तो और अगर अनडिफाइंड वैल्यू इसमें लगा दोगे तो उस पार्ट पे फंक्शन
मतलब उस पार्ट पे y की वैल्यू ही नहीं मिलेगी और फंक्शन बनेगा ही नहीं हमारा, तो वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो अब मैं पहले तो फंक्शन बनना चाहिए, तो उसके बाद तो इन्वर्टिबल की बात करोगे, तो इसलिए मैं यहाँ से माइनस पाई को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। फिर जैसे सेकंड पार्ट इसका ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया माइनस, एक पार्ट ये हो गया हमारा, ये 3π/2, ये पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट मैं ये ले रहा हूँ, कहाँ से इंटरवल है, दैट इज द -π/2 to π/2, और इसमें पाई का वीडियो रुक गया सर। मल्टीपल कौन सा है, 0, इस 0 को हटा देंगे। फिर इसके बाद का इंटरवल लिखोगे तो 3π/2 to 3π/2 लिख सकते हैं, and in which we will get the value multiple of pi, that will be pi here। ये यहाँ पे देखो, इधर 0 इनफाइनाइट बन जाएगा और इधर से घूम के आएगा तब इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अब इस तरह से हम, देयर आर सो मेनी इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज गोइंग टू बी 1 1, जिसमें कि फंक्शन हमारा 1 1 बन जाएगा, और 1 1 बनेगा तो फिर ऑन टू ऑलरेडी है ही है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाएगा। अब बात आती है कि किसको प्रिंसिपल ब्रांच बनाई जाए। सो वी विल टेक दिस ब्रांच, इट इज आवर प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल की वैल्यू पता ही होगी, प्रिंसिपल मतलब होता है मेन, इट इज आवर मेन ब्रांच। एंड व्हाट इज द मेन ब्रांच, -π/2 to π/2 except 0. So we are going to take the domain in this form. हम डोमेन के फॉर्म में ये वैल्यू यूज करने जा रहे हैं फॉर मेकिंग आवर फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल बनाने के लिए। अब देखो मुझे कहाँ से कहाँ, हाँ यस यू, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस होल ग्राफ। इस पूरे ग्राफ में अगर कहीं से भी कोई चीज तुम्हें डाउट, वीडियो रुक गया सर। यस यू, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है, राकेश, you have No, opened sir. your mic and if there is any problem you can ask to me. कोई दिक्कत है तुम्हें, Yes, कुछ sir, प्रॉब्लम I है? am not saying anything. No, sir. Okay, No, sir. please mute your mic. अपना माइक म्यूट कर लो, जब प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना ओपन करके। हाँ, तो अब मैं जितना मुझे यूज करना है उतना ही ग्राफ में रख रहा हूँ और सब मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो मुझे कितना यूज करना है, सर ठीक से माइनस, दिखाई नहीं दे रहा सर। कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है यार, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे वाले को मैंने ये लिखा, ये देखो, ये प्रिंसिपल ब्रांच हो गई, ये प्रिंसिपल ब्रांच है, इसी को मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। हाँ कट जा रहा है थोड़ा सा। अब देखो मैं उसी पार्ट को खाली यहाँ पे रख रहा हूँ ग्राफ में, जिसको कि इन्वर्टिबल, मुझे जितना मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच के फॉर्म में लिखा है। तो अब कहाँ से लिखा है मैंने, -π/2 to π/2 लिखा है। इसके अलावा जितना पार्ट है वो मैं उस ग्राफ में हटा दे रहा हूँ, और अपना माइक कोई आप ऑन मत करो, इट विल क्रिएट डिफिकल्टी फॉर मी एज वेल एज you all. So please switch off your mics so that it will be convenient for me and you also. तो मैं इतना पार्ट हटा दिया, अब मैंने देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक मुझे रखना है। और हमारे क्या है भाई, आदर्श प्लीज, मुझे बार बार ये बात ना बोलनी पड़े, प्लीज अपने माइक ऑफ करो। आदर्श बेटे माइक ऑफ करो अपने। नहीं हो रहा तो क्या बात है, म्यूट, हाँ म्यूट ऑल करिए, पता नहीं ऊपर वाला वो है। अब देखो ये जितनी देर क्लास चले, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट ओपन योर माइक, वेन एवर यू फील डिफिकल्टी only that time you will open your mic, so that it will be convenient for me as well for you, that you will get the clear voice. Look here, this is our graph,
मैंने पूरा ग्राफ रिमूव कर दिया, मुझे जितने से काम था मैंने उतना रख लिया। ये अब इसका डोमेन कौन हो गया? मेरा डोमेन हो गया यहाँ पर जो मैंने रखा है प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 to π/2 and except 0, it is our domain. And what is the range here? That is r -1 to 1. f -π/2 to π/2 except 0 and r -1 to 1. Okay. For fx equals cosec x. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यू कैन ओपन योर माइक एट वंस एंड प्लीज आस्क टू मी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब ये ग्राफ ये याद रखना है कि एक इनवर्स का ग्राफ नहीं है, ये किसका ग्राफ है? कोसेक का ग्राफ है, जिसको हमको इन्वर्टिबल बनाना है। कोसेक का तो पहले वाला भी ग्राफ था, वो ऐसा ग्राफ था जो कि पूरा फंक्शन कवर कर रहा था। अब मुझे ऐसा, मैंने यहाँ पे क्या किया, डोमेन कन्फाइन कर दिया। इट इज अवर कन्फाइंड डोमेन एंड फॉर विच वी कैन मेक इट 1 1, जिसके लिए हम 1 1 बना सकते हैं। एज वी हैव सीन दैट देयर आर सो मेनी इंटरवल्स इन विच द होल रेंज इज going to be covered, and as that condition, that is not 1 1. From here it is only this interval we are going to take, and we can see that the whole value is we are taking whole value only once, minus infinite to -1, minus infinite to -1, and 1 to infinite. Here 1 to infinite, the whole value is covered here. अब इसका क्या करना है? इसका इनवर्स, मुझे इनवर्स ग्राफ वीडियो रुक जा रही है। बोलो, कौन बोल रहा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब देखो इसका इनवर्स ग्लिच कर रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज, वॉइस की क्लियरिटी नहीं है अभी भी। नो सर। आर रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 टेंड्स टू -π/2 to π/2 except 0. π/2 except 0। ये क्या हो गया? ये इनवर्स, जैसा हम जानते हैं इनवर्स में क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। अब ये किसके लिए हो गया? fx इक्वल्स कोसेक इनवर्स x के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, जब हम इनवर्स का ग्राफ ड्रा करेंगे तो यही पूरी वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, y और x एक्सिस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ किसका है? ये fx इक्वल्स कोसेक x का है। कोसेक x। और मुझे क्या करना है? इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना है। तो लुक हियर, y dash x dash and x, but what are the values on the y axis here? 0 1 -1. These value will come on the x axis here, 0 1 and -1. And here it is the parallel to the y axis, here it will be this line, here it will be parallel to x axis. So it is the line which is parallel to x axis, that is 0 and π/2. Suppose y equals π/2, this line, equation of this line is y equals π/2, and here it is y equals -π/2, and the coordinate of this point is 0 because it is y axis, so coordinate of axis will be 0 and -π/2. अब जरा यहाँ देखो, ये इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है? ये π/2 पर पॉइंट है, और π/2 पर ये कहाँ, ये वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 इज हियर, -1 एंड इट इज π/2। तो ग्राफ कैसे घूम रहा है? इस पॉइंट से ये 0 की तरफ घूम रहा है, और किधर? जिधर ये y एक्सिस खत्म हो रही थी। अब यहाँ से मैं देखूंगा तो किधर घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा, मतलब ये ओरिजिन की तरफ नहीं जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ऐसे चला गया। अब जरा दूसरा वाला पार्ट देखो, दूसरा वाला पार्ट क्या है?
पाई बाय 2 और 1 पर है, और पाई बाय 2 और 1, सॉरी, दूसरा है माइनस पाई बाय 2, सॉरी दिस इज नॉट हियर, it is minus pi by 2, it is the negative direction here, minus pi by 2 and 1, minus 1 not 1. अब ये ग्राफ कैसा था, ये देखो यहाँ पर ये वाली लाइन कौन सी है, माइनस पाई बाय 2 की लाइन है, तो माइनस पाई बाय 2 से किधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन मूव कर गया. और दूसरा वाला क्या है, दूसरा है हमारा पाई बाय 2 टू 1, पाई बाय 2 और 1 कहाँ पे वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी सपोज हियर 1, तो ये हो गया 1 एंड पाई बाय 2, कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो गए, और यहाँ से चलेगा किधर जाएगा, ये इस साइड में मूव कर जाएगा ऐसा. ये माइनस पाई बाय 2 आपस में कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो गए. यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ का कोऑर्डिनेट था हमारा माइनस पाई बाय 2 माइनस 1. यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सॉरी माइनस 1 एंड माइनस पाई बाय 2 आपस में इंटरचेंज हो गया. यहाँ से मूव करेगा ऐसे घूम जाएगा, यहाँ से मूव करेगा इस तरह से घूम जाएगा. और ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया एफ एक्स इक्वल्स कोसेक इनवर्स एक्स. अब देखो ये तुम्हारे पास दोनों ग्राफ यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक एफ एक्स कोसेक एक्स का है और ये कोसेक इनवर्स एक्स का है. इफ देयर इज एनी डाउट एनी ऑफ यू कैन आस्क टू मी. अगर इसमें से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो पूछ सकते हो. एनीवन? सर मुझे एक्सक्यूज मी सर. हाँ संदीप बोलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे ना सर इनवर्स में ग्राफ बना रहे हैं सर, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि सर जो वैल्यू है किस बेस पे पुट कर रहे हैं सर. देखो इनवर्स जब बनाते हैं तो सारी वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं. जैसे जो वैल्यूज हम वाई एक्सिस पे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे वैल्यू थी ये 1 0 और -1, अब ये वैल्यूज एक्स एक्सिस पे असाइन हो जाएंगी, तो ये हो गया 0 -1 और 1. और जो ये लाइन थी वो किसके पैरेलल थी, वो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल थी. अब हमारी लाइन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ऐसे. और ये कोऑर्डिनेट देखो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि लाइन हमने चेंज कर दी तो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे. अब यहाँ पर हो गया हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने वाई एक्सिस पे पाई बाय 2 एज्यूम की है, यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 है. तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0 माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा. ये है 0 to 0 और पाई बाय 2, ये डिस्टेंस 1 है सर. हाँ ये डिस्टेंस 1 है. तो अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लेना चाहेंगे दैट विल बी 1 एंड पाई बाय 2. एक्स एक्सिस 1 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पाई बाय 2 डिस्टेंस. दिस इज द कोऑर्डिनेट. हियर distance on y axis that is the -1 and y axis is pi by 2 and x axis is -1, तो -1 and माइनस पाई बाय 2 हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गए. और यहाँ से देखो ग्राफ देखो, ये क्या है, माइनस पाई बाय 2 to -1 है और 0 की तरफ जाके इनफाइनाइट बन जा रहा है. और 0 की ओरिजिन डायरेक्शन में है जा रहा है, इस y एक्सिस के दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है. तो ऐसे यहाँ पर भी x एक्सिस की दूसरी वाली डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट से चलेगा और एक्स एक्सिस की इनफाइनाइट वाली डायरेक्शन मूव कर जाएगा ऐसे. उसी ग्राफ को कन्वर्ट करके पूरा सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी. जो कुछ वाई एक्सिस पे वहां पे दिख रहा है वो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस पे दिख रहा है वो वाई एक्सिस पे हो जाएगा. ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ हो गया तुम्हारा. एनीवन? संदीप सर. हाँ बोलो. ठीक सर. जबरदस्ती ठीक ना बोलो, अगर यहीं से कुछ दिक्कत हो रही बताओ क्या प्रॉब्लम है. नो सर, मैं ना सर उसको मिरर व्यू, मतलब जैसे होता है ना इनवर्स, मैं समझ जाता कि मिरर व्यू से जैसे डायरेक्ट अपोजिट कर लें. तो ये मिरर डायरेक्ट मिरर नहीं है, बोल सकते हो, लेकिन ये मिरर नहीं है. ये जैसे चीजें पलट रही हो सकता है मिरर में तुमको सारी चीजें एग्जैक्ट ना दिखें, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी. तो ये जो वाई एक्सिस है, मतलब सीधे बोल सकते हो जो चीजें वो पूरी एक्स और वाई एक्सिस की इंटरचेंज हो जाएंगी. जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे और उस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी. यस सर. इस तरह से एक ग्राफ का पार्ट कंप्लीट हुआ आज. अब दो एक्सरसाइज 2.1 पे जाने के पहले वे टाइम इज स्प्लिटिंग आउट एंड आई सपोज देयर आर ओनली हाउ मेनी मिनट्स? 5 minutes sir. 5 minutes sir. 5 minutes. There are some properties which I have to start after the exercise 2.1.
कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की जिसको कि 2.1 के बाद मुझे स्टार्ट करना था, लेकिन उसमें से दो प्रॉपर्टी हैं जो कि हम 2.1 के पहले एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि उसके कुछ क्वेश्चन हम दोनों उस प्रॉपर्टी को लेकर भी समझा पाएं और उससे थोड़ा आसान हो जाते हैं, समझने में आसान हो जाते हैं। तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये है हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये बोलती है कि साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। फिर इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x। और ये सारी चीजें आपस में इंटरचेंज भी हो सकती हैं, मतलब ये एक तो फार्मूला हो ही गया, इसको वाट एवर also we can write as cosec inverse 1/x equals sin inverse x। फिर sec inverse, Sin inverse x. हाँ sin inverse x, sec inverse 1/x can be written as cos inverse x, and cot inverse 1/x equals tan inverse x। चाहे ऐसा लिखा है 1/x के फॉर्म में साइन है तो कोसेक x के फॉर्म में आएगा, कोसेक 1/x के फॉर्म में है तो साइन x के फॉर्म में आएगा। तो आपस में 1/x साइन तो कोसेक x, कोसेक 1/x तो साइन x, इस फॉर्म में आएगा। इसका प्रूफ एक दो, ये फर्स्ट पार्ट का तुम्हारा एनसीईआरटी में प्रूफ किया है, हम सेकंड एक पार्ट को ले लेते हैं इसमें से। सपोज आई हैव गोइंग टू टेक द सेकंड पार्ट हियर। जैसे मैंने कॉस इनवर्स वाला ये फार्मूला ले लिया, देखो अब इससे क्वेश्चन एक दो जो कुछ पार्ट है जिसको कि सॉल्व करने में आसानी होगी और बताऊंगा क्यों। 1/x इक्वल लिखा है सेक इनवर्स x, सपोज इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं LHS, कॉस इनवर्स 1/x, और इसे मान लेते हैं मैं थीटा मान लूं, लेट कर लूं, लेट। तो देखो अब इनवर्स की कंडीशन होती है कि ये इनवर्स में ये पार्ट हमारा इस यहाँ मूव करके जा सकता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x इक्वल्स कॉस थीटा, या फिर इस कॉस को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और ये भी 1/x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऐसा, तो sec थीटा इक्वल्स हो गया x। अब फिर से देखो ये सेक इधर फिर घूम के जा सकता है, जब इनवर्स जाता है तो वो डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे इनवर्स गया तो cos थीटा बन गया, और ऐसे इनवर्स फॉर्म में नहीं होगा, दूसरी साइड में ले जाओगे तो वो इनवर्स का फॉर्म ले लेगा। इट मीन दैट इट इज थीटा इक्वल सेक इनवर्स x। अब जरा देखो इस इक्वेशन, ये भी क्या है, ये भी थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू है। तो कंपेयरिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को मैंने कंपेयर कर दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द थीटा हियर, cos इनवर्स 1/x, and it is also theta, that is sec inverse x, and if we compare these two values we will get the formula from 1 and 2. Comparing 1 and 2, cos inverse 1/x can be written as sec inverse x, and it is our formula, and that thing can be also done in this form, इस फॉर्म में भी वही। हाँ यस यू, हेलो सर, समझ में नहीं आया, अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ये 3 फार्मूलेज हमारे बुक में मेंशन है। इन फार्मूलों को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन, अगर साइन में जो वैल्यू दी है 1/x के फॉर्म में है तो कोसेक में डायरेक्ट x बन जाएगी वो, कॉस में 1/x के फॉर्म में है तो सेक में डायरेक्ट x बन जाएगी, tan में 1/x के फॉर्म में है तो कॉट में डायरेक्ट x बन जाएगी, और वही चीज कोसेक में 1/x से कोई चीज तो साइन में डायरेक्ट x बन जाएगी। इसका प्रूफ मैंने एक पार्ट का लिया, cos इनवर्स 1/x, और ये मुझे प्रूव करना है इतना पार्ट। cos इनवर्स 1/x को मैंने थीटा लेट कर लिया सपोज, अब ये इनवर्स मूव करके इधर चला गया, अब ये खाली cos मूव करके जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स 1/x, और इस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1/x सही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो sec थीटा इक्वल्स x हो गया। फिर यहाँ का sec हम राइट हैंड साइड मूव करा सकते हैं,
और जब भी जो ये सेक है और राइट हैंड साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स है राइट हैंड साइड जाएगा तो वो विदाउट इनवर्स बन जाएगा, मतलब cos थीटा डायरेक्ट बन गया। अब यहाँ पे सेक था वो राइट हैंड साइड गया तो सेक इनवर्स एक्स बन गया। अब ये भी थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द वैल्यूज आर थीटा, so we are able to compare them, कंपेयर कर लिया। तो cos इनवर्स 1/x इक्वल्स sec इनवर्स x हो गया, इट इज द फार्मूला। सेकंड फार्मूला आ गया, बोलो किसने पूछा था? हमने पूछा था सर, आ गया। ठीक, ओके। तो इस तरह से ये बहुत ही